I believe there were 60 people who had registered to join via Ma'am, Zoom. we are live. Okay. So a very good evening to everyone, and welcome to a very special session by Global Education Training Institute, or GETI. This disruptive education movement has been conceived with the grand vision of gathering global education leaders under one platform to brainstorm on and to charter the next quantum leap in education. Today, at this very special Facebook and live YouTube live session, with us an internationally famed nutritionist, a record holder for memory, and one of the world's most translated authors on nutrition. He's the author of 5 books. And this is none other than your very favorite Miss Dr. Biswarup Roy Chaudhary. This global stalwart has gathered millions of followers. He holds a PhD in diabetes. The subject of deliberation tonight will probably focus a lot more on that today. And is on the advisory of the RICHS Vietnam. He is a content creator for Lincoln University, Malaysia, and the head of R&D, Sant Hirdaram Medical College in Bhopal, India. This well-known proponent of reversing lifestyle diseases, Dr. Biswarup Roy Chaudhary, has a vision of creating a healthier world through diet. Today, under the GETI Live Forum, Dr. Biswarup is going to address on Food as Medicine Part 2. We had held a similar session about 6 days ago. To be precise, on the 6th of June, we held the previous part 1. And this is a follow-on session to look at how his diet has perhaps impacted people within a very short span of 3 to 4 days. And those, of course, who have followed it strictly, and versus those who have tried it to some extent. So I hereby invite Dr. Biswarup to address our listeners who are very intently waiting to hear from you. So over to you, Biswarup ji. Thank you, Dr. Sundar. Thank you. It's my pleasure. और धन्यवाद एक बार फिर मौका देने का. एंड इसमें बैकग्राउंड में देता हूँ. लास्ट टाइम हमारा 6 जून को 6 बजे बात हुई थी. And that was about the DIP diet. DIP diet is a 3-step diet जिसमें what I have seen in last several years, it has been about now 12 years, कि जो भी लोग DIP diet पे जाते हैं उनका within 3 days उनका blood sugar it starts dropping. As a result, they have to drop their medicine, and insulin they have to reduce by 50%, mostly on average. और जो constipation के patient हैं, and within 3 days the constipation vanishes. और blood pressure के जो patient है, it takes about 7 days to reduce the blood pressure. Normal means they can stop the medication. So these are the small things which is seen most of the time for most of the patients. Of course, there can be some kind of कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे रिजल्ट ऐसे नहीं भी आते हैं, लेकिन मोस्टली रिजल्ट ये यूनिफॉर्मली मैंने देखा है, भारत में देखा है, अलग अलग देशों में देखा है. तो उस दिन हमारी बातचीत हो रही थी 6 बजे, तो तब मैंने ये प्रपोज किया था, विच वी एक्सेप्टेड ऑल्सो, कि वी कैन हैव अ फॉलो अप सेशन जहाँ पे जो लोग इसको करके देखना चाहते हैं 3 दिन के लिए, और करके देखने के बाद फिर हम एक और सेशन करें, एंड दैट इज द सेशन विच वी आर इन राइट नाउ. तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इन सब ने 6 तारीख का वो इवेंट देखा था, नंबर 1. नंबर 2, उसको देख के अपने लाइफ में DIP डाइट को इम्प्लीमेंट किया, या अपने फैमिली मेंबर्स के इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम लोग सब मिले हैं. तो अब यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ फीडबैक्स होंगे बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड. तो वो फीडबैक से हम शुरू कर सकते हैं. एंड फीडबैक आप में से जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं, 1 by 1 उनका माइक ऑन करके, and in a very brief if they have a feedback. So Dr. Sandeep Sharma, I can see हाथ रेज है, तो आप बहुत brief बताएं तो आगे वहां से लेकर हम शुरू कर सकते हैं. Myself Dr. Sandeep Sharma. Actually I want to ask one question about corona. You want to ask question about corona? Okay, carry on please. I want to ask that suppose America or any company make vaccine about corona virus, suppose, and
the RNA virus change its character, change its DNA, then that vaccine will not work. That for sure. Yeah, of course, that is sure. There is no doubt about it. That is sure. And one more question. Suppose one patient is infected from one strain of the virus. He survive and his immunity work. If the virus change its character, change its DNA or RNA, then it is there possibility that he will die from another strain. Can it be more virulent? No. He will get sick again. वो दोबारा बीमार पड़ेगा. Just like a common cold. Common cold एक बार होने के बाद हम इम्यून नहीं होते. इसलिए कॉमन कोल्ड एक बच्चे को साल में 3 बार भी होता है, हमें हर साल होता है, तो वो दोबारा बीमार पड़ जाएगा. तो वो मरेगा नहीं, मरना तो एक अलग बात है, वो बीमार पड़ जाएगा. अच्छा, बीमार फिर भी पड़ सकता है. हाँ, इम्यून नहीं होगा. इम्यून नहीं होगा, मतलब कुल मिला के इसका वैक्सीन बनना इम्पॉसिबल है. हाँ, इम्पॉसिबल है. वैक्सीन बनना इम्पॉसिबल है. वो उतना ही इम्पॉसिबल है जितना इम्पॉसिबल किसी इंसान का हमेशा जिंदा रहना. Exactly, means it is totally a fraud. Now I accept it. I am also a surgeon. Now actually I want to clear from you. Thank you sir. Thank you, Dr. Siddiq. Yeah, Mr. Praveen. नमस्ते डॉक्टर, मैं शुरू करना चाहती हूँ. हाँ, नमस्ते. तो आपका DIP डाइट मैंने सुना था, मैंने अपने फैमिली में सबको करवाया है. आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है प्रवीण. हाँ जी, मैंने अपने फैमिली में DIP डाइट करवाया है. राइट. हाँ जी, तो मेरे दादाजी को वो था बीपी की गोली लेते थे वो पिछले 20 सालों से. हाँ. तो मैंने उन्हें कहा कि छोड़ दो ये, और फिर वो अभी 4 दिन से किया है उन्होंने, उनकी बीपी भी नॉर्मल आया. बहुत अच्छी बात है. 4 दिन में बीपी नॉर्मल, जो 20 साल से बीपी की गोली लेते थे बिना गोली के. दैट इज वंडरफुल. ये तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया. हाँ जी, और एक और क्वेश्चन है हमारा कि मेरे मम्मी पापा को मैंने कराया, मैंने खुद भी किया है DIP डाइट, और फिर पापा को ना रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, और एक तो उनका हेड स्विम हो जाता है सोते रात को, और दर्द होने लगती है उसमें. सुन, Visruji, can you repeat what he has said because we cannot hear him very well? मैं रिपीट करता हूँ. मिस्टर प्रवीण का जो था कि DIP डाइट इन्होंने अपने दादाजी को कराया. दादाजी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है फॉर लास्ट 20 years. ही हैड बीन टेकिंग मेडिसिन, और अभी इन्होंने मेडिसिन छोड़ दिया पिछले 4 दिन में, और ये DIP डाइट किया, और अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया बिना मेडिसिन के. दैट इज द ग्रेट थिंग. 20 years blood pressure with medicine, and now for 4 days without medicine with DIP diet the blood pressure is normal. That is one thing he is given input. And इसका स्पीकर पे रहने दो ना, हटा दो. और इसके बाद इनका एक सवाल है अपने पेरेंट्स के लिए कि जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी प्रवीण, कि आपके पेरेंट्स का, आपकी मम्मी का शायद आप बोल रहे हैं कि पैर और हाथ सुन्न हो जाते हैं. इज दैट द क्वेश्चन? मेरे पापा का पैर और हाथ सुन्न हो जाते हैं. इसे जोर से कर दो ना, कटा दो इसको, कर दो ना. इसमें क्या बात हो गई है? मुझे ऐसे अच्छा लगता है. अच्छा है. मैं बात कर सकती हूँ. अगर कोई DIP डाइट करेगा फॉर लॉन्ग 3 महीना, आपको वीडियो दिखानी है? ऐसे आवाज नहीं जाएगी क्या? ऐसे जॉब मूड बनाया करो, हर थोड़ी अच्छा छोड़ो करना पड़ेगा. जो बच्चे यहाँ तक आ रही है. सो प्रवीण, ये तो गया लॉन्ग टर्म सोल्यूशन 3 महीने में. अभी क्या करना है, जिनका भी पैर सुन्न होता है, हाथ सुन्न होता है, रात को सोने से पहले एलोवेरा लेना है. एलोवेरा पत्ते से लेना है, पौधे से लेना है, ना कि बॉटल से, और लगा लेना. मुझे ये पूछना है, अगर मान लो कुछ पूछना हो तो मैं पूछना चाहती हूँ ना, कैसे बोलूंगी? समझ नहीं आ रहा. फोटो दिख रही है उनकी, वो दिख रही है, मेरी कैसे हो सकती है? अगर ऐसा करेंगे तो विदिन 1 वीक पढ़ना शुरू हो जाएगा along with the DIP. बोलो ना उसको, समझ देगा. हेलो, शांति में जाके करो ना. हेलो, वेट बढ़ गया है ऐसा बोल रहे हो? हेलो, तो जो असर है ना वो 1 महीने में दिखता है. 1 month on DIP diet weight reduces by about 10%. 100 kg का आदमी होगा, 1 महीना DIP डाइट करेगा तो 100 का 90 kg आ जाएगा अबाउट. जो लोग मोटे होते हैं तो 1 महीना करना पड़ेगा, तो जाके वेट में असर दिखेगा, पॉजिटिव असर दिखेगा. एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक लास्ट. वो मेरी मम्मी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और उनके अभी दवाई 1 महीने से मैंने छोड़ा है,
और उनके ना दर्द ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कभी कंधे में हो जाता है, कभी पैर में नस चढ़ जाती है, कभी गोडे में हो जाता है, तो उसका मैं क्या करूं? देखिए रोमेटाइड अर्थराइटिस है तो इसकी कोई दवा तो है नहीं, वो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ होती हैं। तो मैं ऐसे पेशेंट को सिर्फ 2 ही चीज बोलता हूँ, DIP डाइट प्लस ग्रीन एंड रेड जूस, पालक का जूस या बीटरूट का जूस अगर ले पाएंगे, और ऐसा करते हुए अगर 4 से 6 महीना होता है तो दिस थिंग कैन बी क्योर्ड, दिस थिंग कैन बी क्योर्ड। थैंक यू सर। थैंक यू। यस डॉक्टर संदीप। Sir, I want to ask one more question. Actually, we lot of groups are there from your name, Dr. Vishru. And as I am doctor, lot of patient ask me a lot of question about the thing. Lot of them I solved, and there are about 50 patients which are in critical condition like lupus, autoimmune disease. So I am giving lot of the suggestion, but actually I want to directly contact and I want to transfer that question directly to you. But I'm not able to talk to the your means your employees not able to. I'm not able to contact with them. इसमें सिर्फ एक ही बात है, देयर आर नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल एंड नंबर ऑफ फेसबुक पेजेस। They are personally contacting me. I have 50 patients. I can treat them, but I want to transfer all the patients to you. तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं bishrup@bishrup.com। सो वो ईमेल एवरी डे माय टीम एंड आई आल्सो ट्राई टू रीड, और उसमें एक भी मेल आता है तो उसको हम डिटेल में हम फॉलो अप करते हैं। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक नंबर दे मेरे को, मैं आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा, एक नंबर दे दीजिए ताकि ल्यूपस के पेशेंट एकदम क्रिटिकल में है, वो आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, नंबर मैं आपका एक नंबर मेरे को मैसेज आता है, उस पे मैं आपसे प्लीज कांटेक्ट करना चाहता हूँ, पर्सनली कोई भी एक एम्प्लॉई हो। आप चैट पे अपना नंबर दे दीजिए डॉक्टर संदीप, चैट पे आप अपना नंबर दे दीजिए और उस पे आपको विश्वरूप जी का नंबर वो आपको देना चाहेंगे दे सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। इस चैट पे ना अपना नंबर दे दीजिए। श्योर। आप नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखो तो 950। आप लोग प्लीज अपना बंद करके रखिए, म्यूट करके रखिए, आपकी आवाज आ रही है कुछ लोगों की। 932626। 95 60 93 2626। विश्वरूप चौधरी इसमें लिख लो ना, गायब नहीं होगा। कोई भी आपके म्यूट कर दिया। हाँ म्यूट ही किया। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप हाथ रेस करके यू कैन आस्क एनी इनपुट यू आर हैविंग। या डॉक्टर संदीप। हेलो Sir, actually, I want to ask about oxidized cholesterol, which I have find it is a very high number in fried butter, that is in ghee. So actually, I want to miss none of the videos of yours or any doctors not have any shown the video about this oxidized cholesterol, which is made from the cholesterol oxidation. So people are very confused about ghee. Yes, I always say that कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ एनिमल को कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने दी है, प्लांट को नहीं दी है। दिस मींस प्लांट कैन नॉट मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल, एनिमल ओनली कैन मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल। आई एम एनिमल, यू आर एनिमल, सो आवर बॉडी इज एबल टू मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब जब हम प्लांट खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, ये सब प्लांट ओरिजिन है, तो हम कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब आप कोई एनिमल सोर्स से चीजें खाते हैं, जैसे हम चिकन खाएंगे, अंडा खाएंगे या दूध खाएंगे, पिएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, तो हम कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप कोलेस्ट्रॉल, डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। तो फिर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में वही वाला रहेगा जो बॉडी खुद बनाता है। बॉडी खुद एक्सेस कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, बॉडी उतना ही बनाएगा जितना बॉडी की जरूरत है। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और हम कोलेस्ट्रॉल खा भी रहे हैं, दैट इज व्हाट कैन कॉज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल का ये थ्योरी एक अगर दिमाग में रख लें, दैट इज वेरी सिंपल, तो देयर कैन नॉट बी अ कंफ्यूजन।
ओके, थैंक यू सर। और इसके अलावा कोई सवाल किसी के दिमाग में कोई है? हेलो सर। या सोनाली आडवाणी इज दैट? हाँ सर मेरा बेटा 10 साल का है, उसको लास्ट मंथ उसको शुगर हुई है, वो 3 टाइम इंसुलिन लेता है। ये मेरा बेटा बैठा है, लेकिन वो 3 बार मैं उसको इंसुलिन देती हूँ सर, लेकिन कम नहीं होता है तभी भी। अच्छा, तो सोनाली जी आप हमारे 6 जून वाले जो हमारा टॉक था गेटी में, उसमें थे आप? नहीं सर, मुझे आज ही पता चला है, मतलब 2 दिन पहले, तभी मैंने डाउनलोड किया। लेकिन जो आप चार्ट बताते हो ना, मैं उसको वो देती हूँ सवेरे, फ्रूट्स सैलेड ये सब देती हूँ उसको। तो ऐसा कीजिए कि वो देते हुए ब्लड शुगर कितना आ रहा है वो एक बार नोट कीजिए। फास्टिंग सर किया और ऐसे 3 दिन का कीजिए फास्टिंग, और लंच के 2 घंटे बाद, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, और रात को 3 से 3 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। ये जो रीडिंग आएगी, ये रीडिंग लेके आपने अभी नंबर नोट किया होगा, जो नंबर हाँ। उस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये रीडिंग है, ठीक है ना? हाँ। और साथ में जो जो चीज खाया बच्चे ने उस दिन, जो आपने डीआईपी डाइट के अनुसार खिलाया, उसकी फोटो क्लिक कीजिए। ठीक है सर वो जो खिलाने के बाद फिर उसको शाम को भूख लगती है, मैं उसको फिर कुछ नहीं दे सकती हूँ? नहीं, खिलाना है बच्चे को, तो जितना खाएगा उतना अच्छा है, लेकिन खिलाने लेकिन 400 शुगर हो जाती है, 500, 400। अभी मैंने उसको की फ्रूट खा के, उसने 2 घंटे के बाद मैंने उसकी शुगर टेस्ट की, 300 थी सर, 280। अभी छोटे बच्चों के लिए क्या है कि फ्रूट खाने से पहले आप कल ऐसा कीजिए, फ्रूट खाएगा ना बच्चा सुबह, उससे पहले 150 ग्राम 150 ग्राम रॉ वेजिटेबल, टमाटर और खीरा खिला दीजिए पहले। ठीक है। उसके बाद फ्रूट खिलाइए जितना खाना चाहे, पहली बात। दूसरी बात, लंच में आप सलाद देते होंगे अकॉर्डिंग, है ना? उससे पहले बच्चे का वेट कितना है? 20 केजी, 35 ऐसी होगा, 35 है ना? तो 35 ग्राम्स यानी कि इतना सारा पत्ते, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, करी पत्ता, 3-4 तरह के पत्ते जो बच्चा खा ले, 30 ले लीजिए, 35 ग्राम ले लीजिए। वो बच्चा पहले चबा चबा के खाएगा, लंच से पहले भी, डिनर से पहले भी। एक बात याद रखिए, जो पत्ते हैं वो इंसुलिन का काम करते हैं, पत्ते इंसुलिन का काम करते हैं। कितना पत्ता? जितना बच्चे का वेट है, राइट? 35 ग्राम्स इन पत्ते अगर खा लेगा, उसके बाद सलाद खाएगा, उसके बाद वो जो खाना खाएगा, और तो फिर ब्लड शुगर नहीं स्पाइक होगा। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी और आखिरी बात, बच्चे को जब रोटी देंगे, अगर रोटी देते हैं आप? हाँ सर। अगर तो रोटी देते हैं तो याद रखिए, बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है गेहूं की जगह चना, रागी, बाजरा, बाकी चीजों को मिला के तब रोटी बनाएं और वो रोटी दें, तो उससे शुगर कम बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये तीनों बदलाव कल करके, फिर ब्लड शुगर चेक करके, और कितना कितना इंसुलिन दे रहे हैं वो पूरा चार्ट बना के एक बार अगर दे देंगे, तो उसको बेस रख के तो मैं आगे और एडवाइस कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर लेकिन इसकी मैं जब भी नॉर्मल भी कर रहती है ना, अभी मैंने उसको फ्रूट्स भी दिया ना, कल उसकी नॉर्मल आई 160 आई, फ्रूट सब देने के बाद। आज उसकी 280 आई, और शाम को अगर कुछ खाएगा ना तो 400, 500 ऐसे हो जाती है उसकी। और स्वीट में कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं समझ गया, लेकिन आप कल जब सिस्टमेटिक तरीके से जैसे मैंने बोला है वैसे ही करके देंगे, तो मैं कुछ उसका एक कंक्लूजन कर पाऊंगा। ऐसे बीच में ये खा सकता है ना सर? मतलब कुछ भी इसको भूख लगे तो? कुछ भी नहीं खा सकता है वो। डीआईपी डाइट अगर आपने समझा होगा, अगर नहीं समझा तो आप 6 जून का गेटी में जाके वो वीडियो भी सेव होगा फेसबुक में, वो एक बार देख लीजिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो तो खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, पीनट्स, आलमंड्स, कैशोनट्स, स्प्राउट्स हैं, ये सारा चीज ढेर सारा दे सकते हैं, जब मर्जी दे सकते हैं, जितना मर्जी दे सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, जब भी बच्चे को भूख लगे, भूख लगने से पहले इतना सारा नट्स दे दो बच्चे को, स्प्राउट्स दे दो, फल ढेर सारा दो, वेजिटेबल्स ढेर सारा दो, कच्ची सब्जी। तो बच्चे के खाने को लिमिट नहीं करना है, काइंड ऑफ फूड को लिमिट करना है, किस प्रकार का भोजन करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लिमिट करना, ना कि क्वांटिटी को लिमिट करना। फ्रूट्स की कोई लिमिटेशन नहीं, कच्ची सब्जी कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट? और स्प्राउट्स है, नट्स हैं, कोकोनट वाटर है, कोकोनट है, डेट्स है, डेट्स मतलब मान लो मीठा खाना चाहता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो ढेर सारा देना है, और जब मर्जी देना है, जब बच्चा खाना चाहे तब देना है।
राइट। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फूड है, पैक्ड फूड है, जैसे रिफाइंड फूड है, बिस्किट, ब्रेड वगैरह, वो सब चीज जीरो, जीरो, बिल्कुल ही शून्य। ठीक है, हाँ तो ठीक। ये एक मोटा मोटा प्रिंसिपल है, लेकिन एब्सोल्युटली क्या क्या कारण हो सकता है, क्यों शुगर हो रहा है, छोटे बच्चा, ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए कल मैंने बोला कि जैसे मैंने बताया वैसा आप एक बार बना के आप देंगे तो उसको देख के आई कैन कम टू सम कंक्लूजन, तो मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, ओके सर। और कोई आप में से थैंक यू सर। रीटा आपने कुछ पूछा नहीं, पूछने का आपका साउंड बंद है, एडमिनिस्ट्रेटर प्लीज रीटा जी। हेलो 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 सर। रीटा जी का साउंड ओपन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हेलो सर। या हेलो सर, आई एम महेंद्र। महेंद्र जी सर, आप ही बोलिए। मैंने 6 जून का आपका सेशन अटेंड किया था सर डीआईपी डाइट के बारे में, और मैंने 8 तारीख से आपका डीआईपी डाइट शुरू किया था। तो मैं 2012 से डायबिटिक हूँ, और मुझे 2012 में मेरी पहली एंजियोप्लास्टी हुई, 2014 में दूसरा अटैक आया तो दूसरी एंजियोप्लास्टी हुई। तब से मैं कुछ महीनों के लिए इंसुलिन पे भी था, लेकिन मैंने 8 तारीख से आपका डीआईपी डाइट स्टार्ट किया। तो उसके पहले मैंने अपना शुगर लेवल टेस्ट कराया था विथ मेडिसिन, वो फास्टिंग अबव 150 था, और आज मैंने 3 दिन के बाद मेरा शुगर लेवल टेस्ट किया तो फास्टिंग विदाउट मेडिसिन 140 हो गया। तो मुझे ये जानना है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ? वॉल्यूम ऊपर कर तो तुम भी सुन सकते हो ना, तुम्हें कुछ बोलना है तुमको। बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो आप दवा मत लीजिए, फास्टिंग कंफर्ट इज वेरी वेरी गुड। उनको हेल्प करने की वजह से ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं बोलती हूँ, इज एन एग्जांपल फॉर अदर पीपल आल्सो कि 3 दिन के अंदर बिना दवाई के ब्लड शुगर वहां पे है जहां दवाई के साथ नहीं, उससे भी नीचे आ गई सर, भी नीचे आ गया। दवाई के साथ 150 था, बिना दवाई के ये स्पीकर कहाँ है? अच्छी बात है। यस सर। अच्छा हो गया कि लोग एनकरेज कि हाँ इतनी जल्दी। उन्होंने मुझे 2 बार एड्रेस करा, फिर मैं बोल नहीं पाई। तो मैं हार्ट के लिए और क्या कर सकता हूँ सर? देखो, हार्ट के जो डायबिटीज के लिए आप कर रहे हैं वो आप हार्ट के लिए कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि डायबिटीज और हार्ट कोई अलग अलग नहीं है। तो जो आप डीआईपी ले रहे हैं इसी को लेते रहेंगे तो आप हार्ट के लिए कर रहे हैं, हार्ट की समस्या दोबारा नहीं आ सकती। तो मैंने सर डायबिटीज की दवा बंद कर दी 3 दिनों में, तो हार्ट की दवा का क्या करना है, वो बंद करना है कि चालू रखना है? इसमें देखिए, हार्ट का सिर्फ एक दवा है, इसमें हार्ट का ब्लड प्रेशर की अगर दवा ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं आप, तो ब्लड प्रेशर इसमें नहीं, ब्लड प्रेशर की दवा नहीं सर। फिर कौन सी दवा ले रहे हैं? फिर एस्पिरिन ले रहे होंगे? नहीं, कैडिनर्व ले रहा हूँ, योगा रोज गोल्ड है 20/75 और स्टारप्रेस आरएक्सएल। इसमें ना 2 ही चीजें हैं, आप याद रख लीजिए सभी को के लिए, कि एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरा ब्लड को थिन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर अगर है ही नहीं, वैसे भी दवा नहीं, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। ब्लड थिनर लेते हैं, लेकिन ब्लड थिनर लेते हैं वो लोग जो इस तरह के डाइट में नहीं है। ये जो डाइट है ये ब्लड को नेचुरली थोड़ा थिन करता है, राइट। दिस मींस यू डू नॉट नीड एनी मेडिकेशन इफ यू कैन बी ऑन दिस डाइट। तो कंक्लूजन ये है कि आप मेडिसिन फ्री होके भी या होके ही आप आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आप आपका हेलो रीटा जी, बहुत देर से रीटा जी हैं जो आपसे बात करना चाह रही है। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? बिल्कुल सुनाई पड़ रही है, कैरी ऑन प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपका वीडियोस देखकर मैं 2018 से आपका डाइट प्लान सारा फॉलो कर रही हूँ, और जो मेरी दवाइयाँ थी वो रिड्यूस होकर तकरीबन 20% पहुंच गई थी। मैं मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड लेती थी, जैसे 1000 ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन, और 3 mg 1.5 mg ग्लिम्प्राइड लेती थी मैं सुबह शाम, और जूनिवेद भी लेती थी। आपकी डाइट से मेरा काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया था। अभी 1 महीने से मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, मॉर्निंग फास्टिंग भी आ रहा है। मैंने पहले दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी थी, तकरीबन सिर्फ 20% लेती थी, 500 mg मेटफॉर्मिन लेती थी, पर अब मुझे फिर से 1000 लेना पड़ रहा है, और साथ में ग्लिम्प्राइड। मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, और मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, थायराइड नहीं, और कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग एक्सरसाइज भी करती हूँ, फॉलो कर रही हूँ, और दोपहर में सिर्फ 1 रोटी मैं जौ की खाती हूँ सब्जी के साथ, और थोड़ी सी दाल लेती हूँ, बाकी पूरा वही आपका डाइट लेती हूँ। और मैं ग्रीन लीव्स भी आपको लेती हूँ, करीब मैं 60 ग्राम के करीब पालक और थोड़ा सा इतना पुदीना और धनिया लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा आंवला डालती हूँ और मेथी पाउडर डालती हूँ, वो स्मूदी बनाकर भी
साथ में थोड़ा सा दोपहर में और आधा रात को देती हूँ। आपका ब्लड शुगर कितना है फास्टिंग का? डॉक्टर साहब पहले तो मेरा 130, 40, 50 आता था, पर अब करीब 200 के करीब ब्लड मॉर्निंग फास्टिंग आता है। कभी 160, 70, 80, 200 दवाई लेने के बाद आ रहा है। पहले तो बिना दवाई के ही इतना आ रहा था, और मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ रखे हैं। तो इसमें जो आप बता रहे हैं ना, ऐसे में मैंने देखा है कि फर्क पड़ता है इमीडिएटली अगर आप सनसेट के साथ साथ डिनर कर लें तो, अलॉन्ग विद द सनसेट 7 बजे से पहले, जैसे अभी ये इस टाइम पे डिनर कर लें, अभी जो टाइम हो रहा है, तो फिर सुबह का वो ठीक हो जाता है, बल्कि पूरा साइकिल ही ठीक हो जाता है। मैं तो सभी को बोलता हूँ कि फिनिश योर डिनर विद द सनसेट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो इसी से ठीक हो जाती हैं। फिनिश योर डिनर विद द सनसेट। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, 7 बजे, 6:30, 6 बजे अगर आपने डिनर कर लिया मान लो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। तो इसको कीजिए। डॉक्टर साहब मैं रात को तो जो थोड़ा सिर्फ वेजिटेबल्स लेती हूँ, बस स्मूदी लेती हूँ और कुछ डिनर लेती भी नहीं हूँ। और वो मैं फिर 8 बजे करीब शाम को भी एरोबिक को एक्सरसाइज आधा घंटा का करने के बाद फिर मैं सिर्फ बचे हुए सैलेड और स्मूदी लेती हूँ। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि नट्स जैसे अगर लेना है, सोक्ड नट्स, तो वो मैं किस टाइम क्या फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, इट इज फ्लेक्सिबल थिंग। तो जो नट्स ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ये दोनों फ्रूट्स जो है ना, बॉडी अलग तरह से डाइजेस्ट करता है, नट्स अलग तरह से करता है। तो नॉर्मली अलग ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट ना होते हुए, क्योंकि ऐसा कुछ खास हम लोग बीमार नहीं है, तो आप मिला भी सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वही जो 8 बजे आप ले रहे हैं ना, उसी चीज को आप 1 घंटा पहले कर दीजिए। सेम चीज अभी लीजिए, जैसे आप बोल ही रहे हैं, सैलड लेते हैं और स्मूदी लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 8 o'clock मेक इट 7 o'clock एंड देन यू सी हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी। 7 बजे 8 बजे देखने को सिर्फ 1 ही घंटे का अंतर है, लेकिन याद रखिए जो चीज सनसेट के साथ साथ हम खत्म कर देते हैं डिनर, दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन द ब्लड शुगर द नेक्स्ट डे, जस्ट 1 घंटा आगे करने से। ओके 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 ओके। और कोई नया तो वही मैं पूछ रही थी डॉक्टर साहब कि अगर आपका कोई डॉक्टर, कोई आपके टीम हो जिससे मैं अपना मॉनिटर करवा पाऊँ मैं? आपका मॉनिटर करने के लिए तो बेस्ट 2 तरीके हैं। फ्री में अगर मॉनिटर करना है तो इस तरह के आप सुनीता गांधी जी से बोलिए कि कभी कभी ऐसा मीटिंग करा दे। और अगर आप वैसे आएंगे, हमारे ईमेल करेंगे, तो वो तो फिर 21,000 दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल चुका है, राइट? सो आइदर फ्री Dr. Sunita Gandhi, ask her to hold some kind of session like this. Otherwise, that is expensive, which you don't need, right? तो यही है। और क्योंकि सर मेरा कंसर्न ये था कि मैं दवाई छूटने के बाद फिर मेरे को लेना पड़ रहा है। अभी 1-1.5 महीने से तो दिमाग मतलब थोड़ा परेशान होता है कि भाई ये क्यों जब स्ट्रिक्टली कर रही हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो उससे थोड़ा मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं यही बोलता हूँ सब पेशेंट को, डोंट गो बाय द नंबर टू स्ट्रिक्टली। ये मत देखिए कि नंबर इतना है उसके पीछे नहीं। आप ऐसे पूछिए अपने आप से, मेरी एनर्जी लेवल कितनी है, मैं एनर्जेटिक हूँ क्या, मुझे नींद अच्छी आती है क्या, मेरे बॉडी में पेन तो नहीं है। तो दैट शुड बी द पैरामीटर। और ब्लड शुगर इसके बाद आता है। अगर बाकी सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है तो नंबर डज नॉट मैटर एट ऑल। मैंने अपने जीवन में तो 2-4 बार ही ब्लड शुगर चेक किया होगा, वो भी एक किसी डेमोन्स्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज इट डजंट मैटर, जब तक कि आपकी बाकी सारे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिए। और जो ब्लड शुगर है, ये बड़ा फास्टिंग वाला जो ब्लड शुगर है, सबके लिए बता रहा हूँ, वो मिस्चीवियस है, मिसलीडिंग है। तो फास्टिंग वाले ब्लड शुगर पर भरोसा मत कीजिए। आपको अपना असली ब्लड शुगर जानना है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद जो होता है पोस्ट पैंडल या सोने से पहले वाला ब्लड शुगर है, उसको देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर ठीक है कि नहीं है। फास्टिंग वाला ब्लड शुगर ज्यादा आने का एक कारण होता है, रात को ब्लड शुगर बहुत डिप कर जाता है करीब 3-4 बजे, फिर वो बाउंस बैक करता है। तो जितना डिप करेगा उतना बाउंस बैक ऊपर करेगा। तो उस बाउंस बैक को हम देखते हैं, हमें लगता है इतना फास्टिंग ज्यादा क्यों है। कई बार तो रात को सोने से पहले आपका 200 होगा और सुबह उठेंगे तो 250 होगा, राइट? तो हमें लगता है यार इतना बढ़ क्यों गया, रात भर तो कुछ खाया नहीं हमने। तो फास्टिंग ब्लड शुगर इज मिस्चीवियस, उसको कभी बेस मत बनाइए। दवाई लेना है नहीं लेना है इसको डिसाइड करने के लिए। डॉक्टर संदीप। Thank you, Dr. Okay, there is also James Reed who's been waiting with his hands up, and one other person. So next, after Dr. Sandeep, maybe we can take James Reed. सर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्री स्टाइल लिब्रे है, आप इसको पहचानते होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसका मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे को इसको ढूंढने में और परचेस करने में बहुत मेहनत पड़ा। मेरी एक आपसे सलाह है, आप अपने इंस्टीट्यूशन में प्लीज इसकी अवेलेबिलिटी करवाइए
और पेशेंट को डिलीवर करवाइए। पेशेंट देने को तैयार है, मिलता नहीं है। और ये जो शुगर का अप डाउन ये है, ये इसी से समझ में आएगा कि कितना मॉर्निंग में बढ़ जाता है, घट जाता है और कैसा होता है। इसको लगाने के बाद पेशेंट बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। मैं तो डॉक्टर हूँ तो मुझे मिल गया और मैं दूसरों को देता भी हूँ और दूसरे मेरे को रिपोर्ट भी भेजते हैं, लेकिन प्लीज आप करिए। मैं 1-2 बार आपके यहाँ फोन भी लगाया था तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं कर पाया, उनको भी शायद दिक्कत हो, तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये फ्री स्टाइल लिब्रे अब मेरे ख्याल से स्टॉक में है, कोई अगर मांगता है हम देते भी हैं, इंडिया में भी, बाहर भी हम भेजते भी। मैंने थोड़ा इसको आप अपने चैनल पे एक बार डिमोन्स्ट्रेट करके कुछ भी करिए, क्योंकि ये अगर पेशेंट के पास पहुंच गया तो ये उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया। उसके बाद वो आपसे शायद बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेगा। मतलब मैं खुद 10-15 पेशेंट में लगा चुका हूँ, बहुत इफेक्टिव है। इसको थोड़ा प्लीज और क्लियर करेंगे अपने चैनल। हाँ, मैं इसको करूंगा, टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, लेकिन यस वी विल जस्ट अवेयर कर देंगे इसको। थैंक यू। जेम्स आप कुछ पूछना चाह रहे थे, फिर उसका प्रिंस भी। जेम्स आपकी आवाज नहीं आ रही। जेम्स, अपना मोबाइल को म्यूट कर दीजिए, किसी एक चीज को, आपके शायद 2 चीजें ऑन है, किसी एक चीज को करिए। Good evening, ma'am, and good evening, Dr. Roy. My question here is regarding just 1 minute, please. My question here is regarding hypothyroidism. I just want to know whether it is curable or a patient has to take the medicines continuously throughout life, and what are the food they should eat, or what are the food that they shouldn't eat. जेम्स, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वी हैव hundreds of patients of thyroid, hypothyroid, to be very specific, or it takes about 1 month to reduce the medicine by 50%. It takes about 3 months to be free of medicine. तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर जो थायराइड के पेशेंट हैं, आप में से कोई आपके लोग, यू टेक द मेडिसिन एंड स्टार्ट द डाइट। 1 महीने बाद यू चेक द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड टेस्ट कराइए, और उस थायराइड टेस्ट में जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट को देख के फिर यू हैव टू टेपर डाउन द मेडिसिन बाय 50%। देन 1 महीना और कीजिए, फिर दोबारा टेस्ट कीजिए, फिर दोबारा अगर रेंज में है, इफ इट इज इन द रेंज, देन यू ड्रॉप द 50% आल्सो, दिस मींस यू आर मेडिसिन फ्री। देन यू गो फॉर 1 month विदाउट मेडिसिन एंड देन चेक अगेन। और अब अगर आपका थायराइड लेवल, TSH लेवल 10 से नीचे है, 10 से नीचे भी है बिना मेडिसिन के, दैट मींस इट इज ऑलमोस्ट रिकवर्ड, नीड नॉट टू कंटिन्यू द मेडिसिन। तो दैट इज अ रूल ऑफ थंब। इट टेक्स 1 महीना से लेकर 3 महीना टू बी फ्री फ्रॉम थायराइड मेडिकेशन विद द DIP डाइट। बट देन दवाई बंद करने के बाद ये डाइट पे तो रहना पड़ेगा लंबे समय तक। So that means it is curable, right? Yeah, always. It is curable always. Because we have met many doctors and they say that you have to take the medicine lifelong, that is you cannot stop the medicines, and when you stop the medicines there will be problems for you. So this is one question that we have. If you stop the medicine and don't do anything, आपने मेडिसिन स्टॉप नहीं किया, आपने फूड एज मेडिसिन यूज किया। आपने मेडिसिन स्टॉप कर दिया, लेकिन उसकी जगह फूड एज मेडिसिन यूज किया। यू एट द फूड इन सच ए वे कि बॉडी को उस फूड को मैनेज करने में मुश्किल नहीं आ रही। तो राइट, तो उसके लिए क्या क्या फूड्स रेकमेंड करेंगे डॉक्टर? व्हाट फूड शुड वो DIP डाइट, और DIP डाइट अगर आपने नहीं सुना तो 6 तारीख वाला वीडियो देखेंगे तो DIP डाइट इसमें एक्सप्लेन्ड है, यू सी दैट। Okay. Yeah, Prince, you wanted to ask. Doctor, I want to ask question. Prince तो काफी देर से हाथ रेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर स्नेहल। हेलो। यस। हाँ डॉक्टर, मैं 15 साल से एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहा हूँ, तो क्या DIP डाइट से एपिलेप्सी पे ऑप्शन? लेट प्रिंस पहले काफी समय से हाथ रेस कर रहे हैं। यस। हाँ सर, आ रही है मेरी आवाज? या आपकी आवाज आ रही है प्रिंस? हाँ जी सर, नमस्ते सर। मैंने अभी से ही कोरोना से ही आपकी वीडियोस में देख रहा हूँ और शेयर्स भी कर रहा हूँ। तो मैंने अभी 10 से 12 दिन ही हुए हैं, मैंने चालू की है DIP डाइट आपको देख करके। तो जैसे मेरे अभी डैंड्रफ थे, जो मेरे को मिल नहीं रहा था इलाज डैंड्रफ का, तो डैंड्रफ तो 3-4 दिन में निकल गए। मैंने एक आपका वो वीडियो देखा था जिसमें आपका वो व्हीट ग्रास जूस का बताया हुआ था उसमें, तो वो आप अभी किसी वीडियो में दिखता नहीं है मेरे को। आप वो बोलते हो कि एडवाइस देते हो पीने के लिए, तो मेरे को थोड़ा वो डाउटफुल था कि वो लूं कि नहीं लूं, इसीलिए वो पूछना था मेरे को।
हाँ प्रिंस, मैं बोलता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो वीट ग्रास का जो सीजन होता है वो होता है सितंबर से लेके मार्च तक। और ये जो सीजन है जिसमें हम बात कर रहे हैं, अभी गेहूं के ज्वारे वो उगते नहीं है ठीक से, या उगते ही नहीं है फॉर दैट मैटर, या मैं नहीं उगा पाता हूँ, यहाँ पे नहीं उगते। तो जब वो उगते हैं उस दौरान मैं उसको फिर प्रमोट करता हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे चलो हम उगा ही नहीं पा रहे हैं तो ये फ्यूटाइल हो जाएगा। तो वीट ग्रास इज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द प्लांट्स। जितने सारे चीजें इंसान खा सकता है पी सकता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर पावरफुल कोई चीज है, अगर आप बोलेंगे किसी एक चीज का नाम लो, तो दैट इज वीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे। लेकिन वो दुकान में बेचने को नहीं मिलता, तो आपको घर पे ही उगाना पड़ेगा, और उगाने का सीजन सितंबर टू फरवरी या मार्च तक है। तो इट इज द मोस्ट पावरफुल फूड। इसके लिए मैंने एक किताब तो इसी के ऊपर बनाई है, हील विदाउट पिल, पूरी। हाँ वही देखी थी मैंने, उसी पर ही फिर मेरे को आया था, क्योंकि मैंने पहले आपको फॉलो नहीं करता था, अभी कोरोना से ही मैंने आपकी वीडियोस देखने शुरू किए हैं। तो उसमें मैं पहले पुरानी सब सर्च करता गया, फिर डिलीट हो गई आपकी फेसबुक में, यूट्यूब में सब, तो मेरे को दिखा फिर। और एक और चीज पूछना था सर मेरे को, जैसे मेरी वाइफ को थायराइड है, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि 10 तक नीचे है तो नॉर्मल है, तो उसको तो 1.1 ऐसा कुछ है, मतलब लगभग कुछ इतना है, तो भी वो बोलता है कि 1 से नीचे रहना चाहिए। डॉक्टर ऐसे बोलता है कि 1 से नीचे रहना चाहिए कंटिन्यू फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, उसके बाद हम धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे दवाई। नहीं, ऐसा ना कि 1 तो अभी ठीक है, दवाई के साथ वो 1 या 1 से नीचे दवाई के साथ है वो, राइट। हाँ जी, हाँ जी। दवाई छोड़ेंगे तो वो एकदम शूट करेगा। तो मैं यही एडवाइस कर रहा हूँ कि दवाई छोड़ने से पहले यू बी ऑन डाइट, राइट। फिर 1 महीने बाद देखना कि वो दवाई वो 1 से नीचे आ जाएगा, अब दवाई छोड़ेंगे तो वो 10 के अंदर ही रहेगा, राइट। नॉर्मली जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 6 बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा 10 के अंदर रहेगा तो इट इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है सर। हेलो, अभी तक कोई भी सवाल नहीं? सर, there are a lot